Assalamu alaikum. My name is Kinza Kazi, and presently I am doing MPhil in Molecular Biology and Biotechnology from the University of Veterinary and Animal Sciences. As we all know, we spent almost 60% of our time in our schools, colleges, and our universities, not only to get good grades or degree, but most importantly to get knowledge and some positive motivation which will define our area of interest and our future output in some certain ways. And while considering all those facts, I always believe that innovative minds can only be succeed when you have a good guiding spirit behind you. You might call it as your mentor. And I believe that a key to be a good mentor is to help people become more who they already are and not to make them more like you. And in my case, I can proudly say that I have a mentor like Dr. Rashid Saif, who not only taught me degree related content but also evolves my vision about progressive learning. I met Dr. Rashid Saif during my undergraduate degree program from Virtual University of Pakistan, and since then, it's almost been 6 years. I was a part of his research team and still working with him on several research-based projects. During my undergraduate degree, he taught me several courses from very basic molecular biology to even totally complex computational biology, bioinformatics, genomics, genetics, biostatistics, and much more. And to be very honest, I always find him so precise about what he was conveying to us and how it will be beneficial in future for us. Whether it's theory or a practical coursework, he always covers every possible aspects of a topic. He always discusses every possible pros and cons of a particular topic, a particular research, or whatever he was telling us. He always discusses and covers every possible aspect, every possible corner of a topic, which was under his knowledge, basically. I still remember when we first attended his lab lectures, he was not only telling us about the procedure of a practical, but most importantly, he was focusing on the details about the equipments, the equipment's worth and the efficiency that have been used in labs, and how these equipments are different from the commercial equipments, and how all these things are used, and what was the worth of all those equipments we have been using in our labs. Besides the coursework he taught me, I got a privilege to work under his supervision on several research-based projects, as I mentioned earlier. Because my major domain was computational biology and bioinformatics, so my research-based projects was related to that domain. And as I told you, my major was bioinformatics, and to be very honest, in my first year of undergraduate degree, little did I know about that degree it was some sort of interdisciplinary field of biology. But after working with him, I got a very fine grip on my domain. He taught me different basic biocomputational languages such as Python, R, Perl, and he also introduced very basic environments that we have been using for biocomputational analysis, such as Linux and Unix. I also got a chance to learn several biological techniques that we have been used for to conduct biological analysis, such as next generation sequencing, PCR amplification, primer designing, very basic primer designing, phylogenetic analysis, statistical analysis, and theoretical testings. And the list is quite endless in all those areas.
My first research project with him was based on Python programming, through which we have done genomic data mining and basic statistical analysis. Though that research wasn't much advanced, but it gives me a very versatile exposure about how programming and scripting languages are used to conduct biological analysis. I also learned how mathematical modulation and analysis softwares are used in biological analysis. It seems very opposite, but yes, we can use so many mathematical modulation softwares to conduct biological analysis, and even we can also do a 3D biological modeling with all those softwares. I also did another project which was based on these mathematical modulation softwares. Some of very basic software. One is Mathematica, which will by using this software, I did computational proteomics data mining of heat shock proteins. And in this project, we analyze variation of heat shock protein efficiency in different animals and birds, and how they stabilize their internal body condition with external stressful environment. Afterward, by using this same software, I designed relative gene pathways which somehow help us to maintain stability amongst living organisms under the extreme atmospheric conditions. Another research of mine under his supervision was based on a very familiar and most used programming language for biocomputational analysis known as R programming. With the help of this platform, I did a next generation sequencing of different breast and colon cancer RNA based dataset and find out mutational variations in comparative samples. I would also like to mention that I not only worked on these research projects, but with the help of his guidance, I was able to publish all that work in several well-known international research journals. He is not only a good teacher, but a good human being too. And one thing which I always admired about him is that he treats every student of him equally and never creates any negative competition between them. He always helps his students no matter how hard, how difficult it was. He was just a one call away. You can call him anytime. He always gives you a very positive suggestion. And more importantly, if he was able to help us, he was present then and there in one go. And all those things are the reason I always consider him as my mentor, because he always encourages and motivates me to learn and be creative in your chosen domain. He never makes me feel like I am nothing and I don't have any capacity to learn. Besides that, he always motivates me to do things what you have been made for, like what are your particular aspects, what are your creativity, what are the things that you can done by your own self, how your mind can work. So he always gives you a brain map, and then you can implement that brain map on your particular creativity, and you can done a lot of things. And because of his guidance and the publications I have done under his supervision, I was able to score a fully funded scholarship in medical bioinformatics from University of Verona, Italy, and it was a MPhil reading to PhD scholarship.
I always thank him for being such a supportive person in my studies, and I wish that I will keep learning from you. My good wishes are always with you, sir. And may Allah bless you with the best of everything you have. Ameen. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलहा तमसील है। मैंने रिसेंटली BS बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट किया वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से। मेरा कुछ अर्सा एज अ टेक्नोलॉजिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट चुगताई लैब में भी सर्व हुआ और अब मैं अपने फादर के साथ बिजनेस में इस टाइम आ चुका हूँ। इंसान का जो पीरियड होता है ना, जिसमें वो एजुकेशन हासिल कर रहा होता है, उसमें वो 60 to 70% जो है ना, अपना वक्त जो है अपने इंस्टीट्यूट में गुजारता है। इंस्टीट्यूट में अपने टीचर के साथ गुजारता है, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ गुजारता है और अपने दोस्तों के साथ गुजारता है। और इंसान का जो वही वक्त होता है वो सबसे फ्रूटफुल होता है, सबसे यादगार होता है। वो चाहे स्कूल का वक्त हो, कॉलेज का वक्त हो, यूनिवर्सिटी का वक्त हो, वो सबसे यादगार लम्हे होते हैं। उसी के अंदर मेमोरीज होती हैं, उसी के अंदर सारा कुछ होता है, उसी के अंदर आपकी ऐसे ऐसे स्किल्स होती हैं, ऐसे ऐसे आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं कि जो आप अपनी फर्दर प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जो है अप्लाई कर सकते हैं। अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो यूनिवर्सिटी के अंदर ही मैंने BS बायोटेक्नोलॉजी किया, तो तकरीबन 4 साल मैंने जो है ना यूनिवर्सिटी के अंदर गुजारे हैं। इसके अंदर मैंने बहुत कुछ सीखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने काफ़ी चीज़ें वहाँ यूनिवर्सिटी से जो है ना ऐसी चीज़ें गेन की जो प्रोफेशनल लाइफ में काम आ सकती हैं और आती हैं। यूनिवर्सिटी बेसिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का बेसिक पर्पस सिर्फ ये कोर्स पढ़ाना नहीं होता, इंसान को सोशलाइजेशन के लिए, या आप ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में जाने के लिए प्रिपेयर करना होता है। इसी तरह इसी टाइम पीरियड के अंदर आप जो है ना अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। कि कुछ लोगों को किसी स्टूडेंट की किसी टीचर के साथ बहुत अच्छी इंटरेक्शन होती है, किसी स्टूडेंट की किसी टीचर के साथ इंटरेक्शन होती है, और हर टीचर की अपनी एक नेचर होती है। इसी तरह मेरा भी अपने एक टीचर के साथ इंटरेक्शन था, डॉक्टर राशिद साहब साहब। बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी, वेल ग्रूम्ड, वेल एजुकेटेड, कॉन्फिडेंस से भरपूर और इनका पहाड़ जिसको आप कह सकते हैं। मेरी उनके साथ इंटरेक्शन टीचर के साथ साथ एक अच्छे दोस्त की भी थी और है भी। वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने मुझे मेरे BS बायोटेक्नोलॉजी के 2nd सेमेस्टर से लेकर मेरे 8th सेमेस्टर तक मेरा साथ दिया। मेरे हर प्रोजेक्ट में, हर मेरी असाइनमेंट में, मेरी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम के अंदर वो मेरे साथ थे, मेरे साथ खड़े हुए। उन्होंने मेरे साथ मेरी हेल्प की, हर मामले में मेरे साथ हेल्प की। मुझे ऐसे लेके चलते थे जैसे मैं उनका बेटा हूँ, और जैसा मोहब्बत अपने बेटे के साथ होती है वैसे उनकी मेरे साथ मोहब्बत थी। अगर मैं उनके बारे में आपको बताऊं, डॉक्टर साहब एक कॉम्पिटेंट आदमी, अपने काम के साथ लगन रखते हैं, वेल एजुकेटेड, वेल मैनर्ड, फ्रेंडली, अट्रैक्टिव, इनोवेटिव माइंड के इनोवेटिव आइडियाज़ आपके जहन में आते रहते हैं। डिफरेंट आइडियाज़ के हमें क्या काम करना चाहिए, किस चीज़ से काम रिलेटेड काम करना चाहिए, हम इस काम को किस तरह लेके चल सकते हैं, हर वक्त अपने स्टूडेंट के लिए अवेलेबल। और डिफरेंट चीज़ें, कोई भी स्टूडेंट अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम लेके आता है आपके पास और आपसे शेयर करता है, वो चाहे एजुकेशन के लिहाज से हो या किसी उसके अपने पर्सनल मामला के लिहाज से हो, तो डॉक्टर साहब उसके अंदर बड़ी उसकी अच्छी गाइडेंस करते हैं। दूसरा, मेरे डॉक्टर साहब के साथ काफ़ी सब्जेक्ट्स रह चुके हैं, जिसमें मोलेकुलर बायोलॉजी है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, जीनोमिक्स है, प्रोटियोमिक्स है, बायोस्टैटिस्टिक्स है, और भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। और फिर हमने कुछ डॉक्टर साहब से मिलकर कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी सीखी हुई हैं, जिसमें पाइथन हो गया, R हो गया, मैथमेटिका का एक सॉफ्टवेयर है जो मैथमेटिशियंस यूज़ करते हैं फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। वो हमने डॉक्टर साहब के मिलकर जो है ना मैथमेटिका सॉफ्टवेयर यूज़ किया, जिसके बाद हमने उसमें फर्दर पब्लिकेशन, डाटा माइनिंग की थी, प्रोटियोमिक डाटा माइनिंग की थी, हीट शॉक प्रोटीन की थ्रू मैथमेटिका। हम अपने लिए फर्दर अगर पब्लिकेशंस की बात करें तो मेरे डॉक्टर साहब के साथ पब्लिकेशन भी हैं, जिसमें CRISPR-Cas9 के ऊपर इंट्रोडक्शन भी हमने जो है ना रिव्यू आर्टिकल लिखा था, जिसमें हमने डिफरेंट CRISPR-Cas9 के ऊपर ये CRISPR-Cas9 के ऊपर जिसको हमने CRISPR-Cas9 का इंट्रोडक्शन दिया था कि कैसे उसके अंदर बैक्टीरिया मशीनरी यूज़ होती है, बैक्टीरिया मशीनरी यूज़ होती है, जिसके अंदर हम फिर डिफरेंट ह्यूमन डिजीज़ को स्टडी करते हैं, जिसमें माइक्रोसेफेली हो गया,
और सिस्टिक फिब्रोसिस हो गया, और बीटा थैलेसीमिया हो गया, और अगर इम्यून डिजीज़ की बात करें तो उसमें एड्स आ जाता है, डिफरेंट चीज़ें। और दूसरा हम इस चीज़ इसके रिव्यू के अंदर हमने ये चीज़ लिखी थी कि कैसे हम क्रॉप्स की और लाइफ स्टॉक की जो है ना लाइफ को और उनकी जो है ना वर्किंग कैपेबिलिटी को इन्हांस कर सकते हैं। दूसरा हमने इस चीज़ में ये चीज़ भी शेयर की थी और अपने रिव्यूज़ दिए थे कि कैसे फ्यूचर के अंदर इस काम के अंदर इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, CRISPR-Cas9 के अंदर कैसे काम को फर्दर जो है इन्हांस किया जा सकता है। दूसरा फिर हमारा कुछ काम था कंप्यूटेशनल प्रोटियोमिक डाटा माइनिंग ऑफ हीट शॉक प्रोटीन थ्रू मैथमेटिका सॉफ्टवेयर। इसके अंदर हमने मैथमेटिका सॉफ्टवेयर से क्लस्टर डिफरेंट लिंक्स को हमने देखा था हीट शॉक प्रोटीन के। ये भी हमारा बहुत अच्छा काम था, जिसके अंदर हमने जीन एक्सप्रेशन देखे थे कि कैसे हीट शॉक प्रोटीन के डिफरेंट नेटवर्क के साथ जीन एक्सप्रेशन है। उसकी हमने प्रोटियोमिक ट्रांसक्रिप्शन देखी थी, मेटाबोलॉमिक्स देखी थी, और उनको रिलेट किया था दूसरे नेटवर्क के साथ। फिर हमारा कुछ काम था जो हमने सबसे पहले काम स्टार्ट किया था पाइथन का। पाइथन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर साइड की है, प्रोग्रामिंग साइड की है, लेकिन हमने उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए हमने अपने डाटा माइनिंग की, जीनोमिक डाटा माइनिंग की थी हमने, कि कैसे हम पाइथन लैंग्वेज को यूज़ करके हम बायोलॉजिकल साइड पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह GC परसेंटेज हो गई, GC परसेंटेज के अलावा हम फाइलोजेनेटिक ट्री हो गया, ये जीन सीक्वेंसिंग हो गई, और डिफरेंट चीज़ें जिसके अंदर हमने ये चीज़ें की थी। और भी बहुत कुछ हमारा सर के साथ पब्लिकेशंस के अलावा है। ये थी सारी चीज़ हमारा सर के साथ टाइम। हमारी दुआ है कि सर हमेशा अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने गोल्स में हमेशा कामयाब रहें। This is all about Dr. Rashid Saif. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. This is Talha Jalil Khan, lecturer of biology. In my teaching career, I observed that the teacher is a role model for the students. If the teacher is motivated in a subject, then the student will also become sincere with the subject. तो ऐसे ही एक motivated person के बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगा इस वीडियो में, डॉक्टर राशिद साहब। डॉक्टर राशिद साहब आजकल एसोसिएट प्रोफेसर गुलाब देवी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं। आई मेट डॉक्टर राशिद साहब एट द प्लेटफॉर्म ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी डेविस रोड कैंपस। So उस टाइम एट द टाइम राशिद साहब वाज डीलिंग विद द मोलेकुलर बायोलॉजी एंड जीनोमिक्स सब्जेक्ट। और जब मैं मिला उनसे तो हमने बड़ी ही बेसिक बायोटेक्नोलॉजी की बातें डिस्कस की। We discussed that what is DNA extraction, how can we extract a DNA from the blood of organism, from the cell of organism and any other part of the body of organism, what are the different chemicals we use in the DNA extraction, and what are the functions of different chemicals in the DNA extraction, what is the function of alcohol in DNA extraction, buffers in DNA extraction, lysis buffers in DNA extractions. How can we extract the DNA from the different organism with the different methods in DNA extraction. फिर उसके बाद हमने जब ये चीज़ें डिस्कस की बड़े ही मोटिवेशन के साथ राशिद साहब ने हमें डिस्कशन की हमारे साथ। देन PCR टेक्नोलॉजी हमारे साथ डिस्कस की, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के हाउ कैन वी मल्टीप्लाई, हाउ कैन वी मेक क्लोन्स ऑफ अ जीन इन अ मशीन। बेसिकली हमारा एक कॉन्सेप्ट तो बड़ा बेसिक था कि हम वायरसेस के जरिए या बैक्टीरिया के जरिए अपने जीन को क्लोन कर सकते हैं। ये भी बायोलॉजी में बड़ा एक कामयाब कॉन्सेप्ट रहा है। लेकिन PCR टेक्नोलॉजी एक मैकेनिकल टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम जीन को क्लोनिंग कर सकते हैं। बिल्कुल ये भी बात हमें डिस्कशन से पता चली उनके साथ। और PCR टेक्नोलॉजी में क्या बेनिफिट है कि हम बैक्टीरिया के थ्रू ना करें, PCR टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर जीन को क्लोनिंग करें तो क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं PCR टेक्नोलॉजी के क्लोनिंग के। तो बड़ी एक डिस्कशन, एक डिटेल डिस्कशन हमारे साथ डिस्कशन हुई। फिर प्राइमर्स, फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर्स दैट आर यूजिंग इन द PCR टेक्नोलॉजी, व्हाट आर द डिफरेंस इन द प्राइमर्स ऑफ PCR टेक्नोलॉजी एंड द सेंट्रल डोग्मा प्राइमर्स। So what are the strands, what are the nucleotides that are making the strands, what are the enzymes, polymerase enzymes, what are the speeds of polymerase enzymes in the different circumstances. So बड़ा ही टेक्निकल
कॉन्सेप्ट्स उन्होंने हमारे साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए और वी क्लियर्ड द डिस्कस विद देम, वी क्लियर्ड द ऑल काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स विद द डिस्कशन विद हिम। देन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल हाउ कैन वी मेक द जेल agarose gel, what is the function of agarose, what is the function of the pyridium bromide that is using in it। तो ऐसी चीजें हमने डिस्कस की। हाउ कैन वी विजुअलाइज द बैंड्स ऑफ DNA और जीन of different organism, how can we make compartments with the help of comb, with the help of separate, so these kinds of things we are discussing with him at the time। और बड़ी बातें उनके साथ क्लैरिटी मिली। एक चीज जो मुझे उनसे सीखने को मिली कि वो हर चीज की ना जी एक एडवांटेज डिस्कस करते हैं पहले, क्योंकि हमारे लोगों में एक मेंटालिटी ऐसी है कि हम एडवांटेज की तरफ पहले, अगर हमें एडवांटेज उस चीज की डिस्कस हो जाए तो हम अट्रैक्ट होते हैं उस चीज की तरफ। तो वो हमेशा उनकी मुझे एक लाइन याद है कि बेटे ये एक PCR मशीन है 13 लाख रुपए की आती है, ये फला काम में काम आ सकती है, ये लाडली साइंस है। तो बड़े एक ह्यूमर क्रिएट करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। और एक चीज जो मैं फॉलो करता हूँ उनकी, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनसे मिलने से पहले भी अपने प्रोफेशन में इन्वॉल्व था और इम्प्लीमेंट हो चुका था, मैं एनग्रोज्ड हो चुका था अपने प्रोफेशन में, टीचिंग में, और अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंट था। तो लेकिन एक चीज जो एज अ पर्सन मुझे उनसे सीखने को मिली कि टीचर शुड ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट। हमें जब भी कोई इश्यू होता था तो हम ये नहीं देखते थे कि वो डॉक्टर साहब बैठे हैं, हमने तो सर बैठे हैं कोई इश्यू नहीं, हमने नॉक करना और हमने जाके पूछना कि सर ये कॉन्सेप्ट है कि तो बात ये क्लियर कर दें, कैसे क्या करें, इसके आगे क्या करें। तो अगर वो अपना काम भी कर रहे होते थे तो वो हमारे से पहले डिस्कशन करते थे, देन वो हमें जब सेटिस्फाई हो जाते थे हम, तो हमें वो अपना काम फिर कंटिन्यू करते थे। तो एक चीज मुझे ये सीखने को मिली जो मैंने अपनी लाइफ में अडॉप्ट की कि हमें जब भी कोई स्टूडेंट आ जाए तो हमें अवेलेबल उनके लिए होना चाहिए। तो यही एक बड़ी पॉजिटिव चीज रहती है टीचर को लेके। तो आई एम ऑल्सो फॉलोइंग दैट कॉन्सेप्ट। और तो इसके अलावा हमारे पास बहुत सी कीमती उनके मशवरे लाइफ को लेके, सिंसियर रहने की, अपनी बात को सिंसियर, यही अल्हम्दुलिल्लाह यही एक बात है कि हमने बायो को अपने अंदर एनग्रोज किया, बायो को अपने अंदर उतारा, उसको डिस्कस किया और एक्स्ट्रा नॉलेज को हमने प्रेफर किया कि किस तरह हम अपनी लाइफ में बायो को, अपने माइंड सेट को प्रेफरेंस दें बायोलॉजी को। तो बड़ा ही एक उनकी मोटिवेशन से हमें सीखने को मिला। इवन के कोरोना वायरस एक चल रहा है आजकल पूरे वर्ल्ड वाइड में, तो राशिद साहब ने उस पर रिसर्च आर्टिकल किया, तो रिसर्च किया थोड़ी, तो उसके ऊपर मैंने उनसे एक डिस्कशन की जो आजकल हमारी चल भी रही है कि कोरोना वायरस में siRNA टेक्नोलॉजी जो आती है, जो कॉन्सेप्ट है, क्या ये प्रेफरेबल है कि हम siRNA टेक्नोलॉजी के थ्रू इसका इलाज करें, इसकी ट्रीटमेंट करें। तो डिस्कशन की है मैंने, होप सो हमारी इसके ऊपर फ्रूटफुल डिस्कशन हो। तो इवन कि siRNA टेक्नोलॉजी मैंने उनसे नहीं स्टडी की, लेकिन ये उनकी मोटिवेशन का नतीजा है, इट इज द रिजल्ट ऑफ हिज मोटिवेशन कि वी आर gaining, we are taking with the, we are concerned with the subject, or we are gaining extra knowledge in our mind, so that's why we are discussing that kind of concept with him। so और ये आर्टिकल इवन के ये कॉन्सेप्ट मैंने एक और जगह पे जहाँ पे रिसर्च हो रही है इसके ऊपर मैंने उनको भी लिख के भेजा, तो उनका भी मुझे ये रिप्लाई आया कि बिल्कुल हम इस टेक्नोलॉजी पे वर्किंग कर रहे हैं। तो होप सो शायद इसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आए इंशाल्लाह। इसके ऊपर मैं अपने यूट्यूब के पेज तला खान बायोलॉजी के ऊपर आज एक वीडियो भी लिखूंगा कि किस तरह कोरोना वायरस और किस तरह siRNA टेक्नोलॉजी के ऊपर इफेक्ट कर सकती है कोरोना वायरस के ऊपर ये कॉन्सेप्ट। तो इंशाल्लाह सर बहुत होपफुल है हम, अल्लाह आपको कामयाब करे लाइफ में। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर आपके साथ और बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ गेन किया। तो थैंक यू वेरी मच सर, अल्लाह खुश रखे आपको। तो इंशाल्लाह लाइफ में मिलते रहेंगे, काफी अच्छा वक्त रहा सर। Thank you very much. Allah Hafiz.